this video, we will be taking exercise 8.1. So let us first take question number 1. In this question, we have to find the area of the region bounded by the curve y square is equals to x and the line x is equals to 1, x is equals to 4 and the x-axis. This we have to find out. अब उसने ये बोला कि एरिया बाउंडेड बाय द दिस, ये शेप्स हमें पता होनी चाहिए. y square is equals to x is a parabola. So this is this type, first type of parabola. Y square is equals to x. And the line x is equals to 1 is this line, suppose. So this line is x is equals to 1 and the line x is equals to 4. So the line x is equals to 4, suppose is this line, x is equals to 4. And the x-axis is this axis. So area bounded between the parabola, between line x is equals to 1, x is equals to 4 and x-axis. So this is this much area. We have to find out this area. And while finding the area, this point is 1, 0 and this point is 4, 0. So we need the limits to find the required area. We require from where the area is starting and from where it is ending. So area is starting from 1 and ending at 4. So it is from 1 to 4, right? And this is under this curve. तो जो भी आप कर्व की इक्वेशन लोगे उसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा उस लिमिट के अंदर. सो हमने इक्वेशन ली y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, तो y की वैल्यू हो जाएगी √x इनटू में dx. ठीक है. सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट दिस एरिया. इंटीग्रेशन ऑफ √x मींस पावर हाफ, सो +1. इफ आई ऐड हाफ +1 इट विल बी 3/2. सो 3 यहाँ पर हो जाएगा और 2 यहाँ पर. रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन में. सो दिस इज 2/3 x पावर 3/2. But limit is there, so we will take it 1 to 4 and solve it 1 to 4. So this will be 2/3. In place of x, I am putting 4 power 3/2 minus 1 power 3/2. So 4. So here it will be 2/3. 4 can be written as 2 square into 3/2 minus 1. So this 2 and this 2 will cancel. So this value is 2/3 into 8 minus 1. So 8 minus 1 is 7. 14/3 square units. That is the answer. In this question, we have to find the area bounded by y square is equals to 9x and the line x is equals to 2 and the line x is equals to 4 and x-axis in the first quadrant only. So we have to find this much area in first quadrant only. So this is the information given in this question, and using this information we have to find the area. So let us first draw the curves. So here y square is equals to 9x. This is the first curve, first parabola, which is y square is equals to 9x. And if we take the line x is equals to 2, so ये line हो गई x is equals to 2. And if we take the line x is equals to 4, suppose ये line हो गई x is equals to 4. And the x-axis in the first quadrant. So here हमारे पास एक ये curve हो गया, ये line हो गई x is equals to 2, x is equals to 4, and x-axis in the first quadrant. We have to find out this area like the previous question. So here what we do, we take the limit because it is starting from 2 ending at 4. So the limit is 2 to 4 and it is under this curve. So y square, this is 3√x dx. So this is 3√x का हो जाएगा x पावर 3/2. रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड लिमिट ले लेंगे 2 to 4. So 3 and 3 cancel. So this is 4 power 3/2 minus 2 power 3/2.
सो 4 पावर 3/2 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दिस इज 2 पावर 2 इंटू 3/2 minus 2 power 3/2 is 2 root 2. So 2 and 2 will be cancelled. This will be 8 minus 2 root 2. So हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2. So हमारा बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 4 minus root 2. Or we can write it as 16 minus 4 root 2. That is the answer. In this question, we have to find the area bounded by the curve x square is equal to 4y, y is equals to 2, y is equals to 4, and the y-axis in the first quadrant, and y-axis in first quadrant. This we have to find out here. So x square is equals to 4y. If we see, it is this type of parabola, means upward parabola. We have the line y is equals to 2. So ये तो इसकी equation हो गई. ये line y is equals to 2 है, and the next line y is equals to 4 है, and y-axis. So the area which we have to find out is this area, the area between this. So this point is 0,2. This point is 0,4. अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम y एक्सिस पर ले रहे हैं, ठीक है, लिमिट हम y की ले रहे हैं. सो रिक्वायर्ड एरिया इज 2 to 4, एंड दिस टाइम यहाँ इस कर्व से हम इक्वेशन ले रहे हैं, तो कर्व से नीचे की सारी वैल्यू आ जाएगी विद इन द लिमिट. सो कर्व में x की वैल्यू लेंगे बिकॉज y की लिमिट्स हैं. सो x की वैल्यू है 2 root y dy. दिस टाइम वी विल टेक dy. अगर x एक्सिस होगा तो लिमिट्स भी x की होंगी और वैल्यू भी x की टर्म्स में आएगी. अगर y एक्सिस ले रहे हैं तो dy आएगा और y की ही लिमिट्स आएंगी. सो बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग दिस. सो इट विल बी 2 root y is y power 3/2, and the limit is reciprocal कर लेंगे, multiply 2/3, and the limit is 2 to 4. So this value will be 4/3, and 4 power 3/2 minus 2 power 3/2. So here it is 4/3. 4 power 3/2, directly we can write 8 minus 2 root 2. So here we can write it as 32/3 minus 8 root 2. Here we have to find out the area bounded by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equals to 1. So we have to find out this much area. So ये ellipse है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ ellipse है हमारे पास. अब हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, वैसे तो ये हम 11th क्लास में जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि ellipse कौन से वाला होता है. Still for recall, we can see here the value below x is greater. So it is the first ellipse. If the value below x is smaller, then it will be second type of ellipse. So because ये a square और b square है, so this value will be 4,0 and this value will be 0,3. So we have to find the area bounded by the ellipse. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये हमारे सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं. मतलब ये है कि जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वही एरिया बाकी क्वाड्रेंट्स में भी होगा. सो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स, बिकॉज 4 क्वाड्रेंट हैं और लिमिट शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 4 पर हो रहा है. अब हमें वैल्यू पुट करनी है बिकॉज ये x की लिमिट्स हैं. अब हमें वैल्यू पुट करनी है y की. सो यहाँ पर y की वैल्यू हम अगर निकालें तो y square upon 9 is equals to 1 minus x square upon 16, and y square upon 9 is equals to 16 minus x square upon 16, and y square is equals to 9 upon 16 into 16 minus x square. If I get y, square root ले लेंगे, so this is 3/4 square root 4 square minus x square. ठीक है. और अगर आप डायरेक्टली हमेशा के लिए लर्न करना चाहते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते हो, तो मैं सिंपल आपको बता देती हूँ. y इज इक्वल्स टू जो y के नीचे टर्म है उसका स्क्वायर रूट मींस 3,
जो x के नीचे टर्म है उसका स्क्वायर रूट मीन्स 4. कोई भी वैल्यू हो, कोई भी टर्म हो, इट इज फॉर ऑल आई एम टेलिंग यू. एंड अंडर रूट, this is 16 minus x square. So 16 is 4 square minus x square. डायरेक्टली आप इसको लर्न कर लीजिए. y is equals to, जो y के नीचे वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट इन दोनों का डिफरेंस. So this is the trick to just solve it fast. 3 by 4 is constant. I am taking it outside and this is inside 4 square minus x square. So this will cancel. हमने एक इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चैप्टर 7 में पढ़ा है. ये फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. So here the same formula we will apply here. x की जगह x ही आ जाएगा. अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a. So x upon 4 and the limit 0 to 4. So here we will put, if I put 4 in place of x, so this value will become 0, so I'm not taking it. If I put 4 here, this will be 8 sine inverse 1. Then minus in between. If I put 0, तो ये value 0 बन जाएगी. If I put 0, ये value भी 0 बन जाएगी. पूरा 0 बन गया. And sine inverse 1 होता है pi by 2. So this is 4 and this is 12 pi square units. In this question, we have to find the area bounded by this ellipse. Here we can see x के नीचे smaller value है, तो ये ellipse ये वाला हो जाएगा. और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, तो x के नीचे तो ये वैल्यू वाली वैल्यू 2 और 0 हो जाएगी. ये वाली वैल्यू 0 और 3 हो जाएगी. इक्वेशन तो ये है ही. सो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. तो अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया 0 to 2. ठीक है. इंटीग्रल अब वैल्यू लेनी है, तो मैंने उसमें सिखाया था ना वैल्यू कैसे लेते हैं. y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेना है, तो इट इज 9. इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 अंडर रूट इन दोनों का डिफरेंस लेंगे. तो 4 को मैं 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, स्ट्रेट अवे आप वैल्यू निकालिए. इनटू में 3 by 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू में dx. So this will be 6 limit 0 to 2 root 2 square minus x square into dx. अब ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया है. इससे पहले वाले में तो मैं डायरेक्टली यूज कर रही हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ. ये होता है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a. लिमिट इज 0 to 2. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 6. अब x की जगह अगर मैं 2 रखती हूँ तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी और ये बन जाएगी 2 साइन इनवर्स 1. और x की जगह अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी. So this value is 6 into 2 sin inverse 1 is pi by 2. Learn the table. ये कट गया. This value is 6 pi square units. So this is the area of this ellipse. Here in this question, you have to find out the area in the first quadrant. That means आपको सिर्फ first quadrant में जो area है वही निकालना है. Enclosed by x-axis. The line x is equals to root 3y and the circle x square plus y square is equals to 4. So सबसे पहले तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिगर ऑल्सो कैरीज मार्क्स. और अब इस एग्जामिनेशन में तो हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे ये सर्कल है, सबसे पहले तो हम बड़ा कर्व ही बनाएंगे. अब इसका सेंटर है. देखो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इट विल बी x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्लियरली मालूम चल रहा है कि सर्कल का सेंटर तो 0 0 है एंड जो इसका रेडियस है वो 2 है। दैट मीन्स हमें फिगर बनाने के लिए समझ में आ गया कि ये सर्कल है, इसका सेंटर मालूम चल गया और ये रेडियस मालूम चल गया इसका। उसके बाद x इज इक्वल टू √3y है। आप ये फॉर्म है x इज इक्वल टू my। दिस फॉर्म द लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास करती है। कभी भी आप लाइन ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू mx या x इज इक्वल टू my, ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। सो दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू my। देन x एक्सिस है, तो x एक्सिस तो वी नो वेरी वेल एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहला रूल फिगर बन गया हमारा। उसके बाद जहां पे कर्व्स मीट कर रहे हैं वहां से हमें परपेंडिकुलर डालना होता है, क्योंकि वहीं से एरिया के जो आके कर्व्स हैं जो अपनी इक्वेशंस लेनी है वहां से इक्वेशंस चेंज हो रही होती हैं। मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर कि आप यहां से यहां तक का एरिया लोगे, अगर ये लिमिट लेते हो तो आपको सिर्फ यहां से यहां तक का एरिया आएगा अगर आप लाइन की इक्वेशन लेते हो। और अगर आप नेक्स्ट जो लेते हो यहां से यहां तक की लिमिट लेते हो और सर्कल से इक्वेशन लेते हो तो आपको एरिया 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया 1 प्लस एरिया 2। सो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया 1 प्लस एरिया 2। बट टू फाइंड एरिया 1 आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पॉइंट ए के बिना तो हम एरिया 1 नहीं निकाल सकते। पॉइंट ए निकालने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन निकालना है। सर्कल और लाइन जो दिया हुआ है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो जो x की वैल्यू है मैं सर्कल में डाल देती हूँ। सो दिस विल बी 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, y आ गया। y की वैल्यू अगर हम लाइन में डालेंगे, लाइन की इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। इसका मतलब जो ये कोऑर्डिनेट है ये आ गया √3, 0। ये कोऑर्डिनेट आ गया। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 0 टू √3 dx है। y की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन √3, देन एरिया 2 and this will be √3 to 2 limit, and here the value will be under root 2 square minus x square into में dx. So here 1 by √3 is outside. The value integral of x is x square upon 2. Limit is 0 to √3 plus डायरेक्टली फॉर्मूला बिकॉज √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बहुत लगाया है। x अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में लगा रही हूँ a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। लर्निंग फॉर्मूलाज इज की टू मैथ्स। सो प्लीज अगर आपको मैथ्स में मार्क्स स्कोर करने हैं तो फॉर्मूलाज लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन। So this is √3 का square which will be 3 minus 0 plus if I put 2 this term will be 0 and here a square I have taken and this value is 4 by 2. So this value will be 2 sin inverse 1. Then minus if I put √3 so it will be √3 by 2 और 4 minus 3 1 हो जाएगा। फिर minus 2 sin inverse √3 by 2 this value will be, and here this will be 3 upon 2 √3। 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख के इसको कैंसिल कर सकती हूँ, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 को हम पाई बाय 2 कह सकते हैं, माइनस √3 by 2 and then minus it will be minus 2 pi by 3. So here this term and this term is going to cancel and pi minus 2 pi by 3 will be pi by 3. That is the answer. Square units. Find the area of smaller part of the circle x square plus y square is equals to a square. Cut off by the line x is equals to a upon में √2. So circle है, इसका सेंटर हमें मिल जाएगा ये वाला, पॉइंट हो जाएगा a, 0
and the line x is equals to a upon root 2. So this is the line. So smaller part of the circle cut off by the line we have to find out. So we have to find out this much area. अब जैसे मैंने कहा था ये सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, जो एरिया आप क्वाड्रेंट 1 में निकालोगे वही एरिया क्वाड्रेंट 2 में होगा, सेम ही एरिया होगा, तो हम उसका ट्वाइस भी कर सकते हैं. इसका मतलब सबसे पहले लिमिट निकालने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट ए चाहिए. टू फाइंड दिस पॉइंट ए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो शायद here the value of the coordinates of point A are a upon root 2, 0. अब आपको रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है. रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऑफ एरिया 1. बस हमें यही देखना है लिमिट्स के लिए ये एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, किस पॉइंट से, और किस पॉइंट पे खत्म हो रहा है. सो दिस इज a अपॉन रूट 2 एंड a, एंड दिस इज द सर्कल. ये हमारा सर्कल है. सो यहाँ से आप इक्वेशन ले सकते हो, एंड दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं 2x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a. The limit is a upon root 2 to a. So now I am putting the limit to x की जगह मैंने a रखा, so it is a by 2, और ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a अपॉन a 1 हो जाएगा. ये हो गया. फिर माइनस, अब x की जगह मैं a अपॉन रूट 2 रखूंगी, so it will be a अपॉन 2 रूट 2, then a square minus a square upon 2. This is a square upon 2. फिर प्लस, अब x की जगह मैं a upon 2 रखूंगी, so this is a square upon 2 sin inverse. x की जगह मैं a upon root 2 रख रही हूँ, so it will be a upon a root 2. ये हो गया. So this is 2 sin inverse 1 होता है pi by 2, so this is a square upon 2 into pi upon 2. ये हो गया. माइनस, यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 रूट 2 इंटू a अपॉन रूट 2. सो प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन में 4. सो दिस इज 2 पाई a स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस pi a square upon में 8. If we open the bracket, this is pi a square upon में 4 minus pi a square upon में 8 minus a square upon में 4. So 2, अगर हम LCM लेते हैं तो this is pi a square upon में 8 minus a square upon में 4. Now this is pi a square upon में 4 minus a square upon में 2. So a square upon 2 हम कॉमन ले लेते हैं, so it will be pi upon 2 minus 1 square units. Here in this question we have to find the area between x is equals to y square, x is equals to 4. Area between curve and the line. Let us first draw the figure. Curve ये first वाला है, y square is equals to x, ये वाला, and x is equals to 4 is equals to this line, is divided into two equal parts by the line x is equals to a. एक line है x is equals to a, और वो line क्या कर रही है, इस एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. जो कर्व के अंदर एरिया है, दैट मीन्स लाइन कह रही है कि जो ये वाला एरिया है वो इस वाले एरिया के इक्वल है. So we have to we are given that the red area is equals to green area. So you have to find the value of a here. So if we see the coordinate, this coordinate is a comma 0. This coordinate is 4 comma 0. It is given in the question itself that area 1 is equals to area 2. It is given already. So we will make use of this point. Area 1 is equals to area 2. Area 1 is starting from 0 ending at a. Area 2 starting from a ending at 4. And here
From the curve, we will take the equation in both the cases. So here the curve is y is equals to root x dx, and here it is also root x into dx. So root x is 2 by 3 x power 3 by 2. Limit is 0 to a. Here also 2 by 3 x power 3 by 2. Limit is a to 4. This term and this term will cancel. तो अब हम क्या करते हैं, x की जगह a रखते हैं. So this is a power 3 by 2. ऐसे minus 0 हो जाएगा. And this is 4 power 3 by 2 minus a power 3 by 2. मैंने लिमिट पुट कर दी. अब इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a power 3 by 2 is equals to 4 power 3 by 2. Now squaring both sides, it will be, square करेंगे, it will be 4. This will be a cube and this will be 4 power 3. So a cube is equals to 16. A is equals to 16 power 1 upon में 3. So it will be 2 power 4 upon में units. Here we have to find area bounded by the curve y is equals to x square and y is equals to modulus of x. So y is equals to x square ये आपका upward parabola है. This parabola y is equals to x square and y is equals to mod x. ये लाइन हो गई हमारी. mod x में इधर हो जाएगा पॉजिटिव और इधर हो जाएगा नेगेटिव. So we have to find out the area which is enclosed between curve and the line. This area we have to find out, or this area we have to find out. We have to find out this much area. Red area we have to find out here. So both the areas are same. So we will find out the required area. So we will find out the required area. अब जहां पर कर्व्स मीट कर रहे होते हैं वहां से हमें परपेंडिकुलर डालना होता है. ये हमें ध्यान रखनी है चीज. सो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x रख देती हूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. जस्ट गिव्स x इनटू 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 1. सो दिस पॉइंट विल बी 1, 0. नेचुरली इस साइड -1, 0 आ जाएगा. सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ एरिया 1. एरिया 1 ये वाला हम कह सकते हैं, ये वाला एरिया 1 है. सो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या करना है. इसकी ये 0 से शुरू हो रहा है, 1 से खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया. ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया. तो हमने इसकी लिमिट 0 से 1 ले ली. अगर मैं लाइन की इक्वेशन ले लेती हूँ, इफ आई टेक द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा. ठीक है. सो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x इंटू dx. हमने ये इक्वेशन ले ली. फिर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एरिया आ गया हमें वो माइनस भी तो करना है. ये हमारा एरिया जो कर्व के नीचे का, ये तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें इस एरिया को माइनस करना है, ब्लू एरिया को. तो हम क्या करेंगे, अगेन लिमिट तो इसकी भी सेम है. अगर मैं अब कर्व से इक्वेशन ले लेती हूँ, दिस टाइम अगर मैं कर्व से इक्वेशन लेती हूँ तो कर्व के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा. सो कर्व से इक्वेशन ले ली, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू में dx. ये हो गया. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. इंटीग्रल x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एंड लिमिट है 0 to 1. फिर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3 है और इस लिमिट है 0 to 1. ये ऐसे है. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 2 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1 रख रहे हैं और फिर 0 रखेंगे तो इट विल बी 1 ओनली. सो 1/2 इट विल बी माइनस, अब ये अपॉन में 3 है, अब x की जगह 1 रखेंगे तो इट विल बी 1/3. सो दिस वैल्यू विल बी 2 इंटू, अब एलसीएम 6 हो जाएगा, सो 3 - 2. सो दिस वैल्यू विल बी 2/6. दैट मीन्स 1/3 स्क्वायर यूनिट्स. That is the answer. Now in question number 10, you have to find the area bounded by the curve x square is equals to 4y and the line x is equals to 4y minus 2. So curve x square is equals to 4y, तो ये वाला कर्व हो गया हमारा. लाइन, अब
लाइन का रफ फिगर हमें चाहिए। बहुत सिंपल मेथड में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप लाइन निकाल सकते हो। एक बार आप y को 0 पुट करके देखो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0 और -2। इसका मतलब ये वाला पॉइंट सपोज हो गया रफली 0 और -2, ठीक है। उसके बाद अगर आप x को 0 पुट करते हो, सपोज इस बार आपने x को 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। यानी दूसरा पॉइंट ये हो गया। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो तो ये लाइन आपकी आ गई, ये इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया, ठीक है, इन बिटवीन द कर्व्स एंड द लाइन। सो ये एक चीज इंपॉर्टेंट होती है इस क्वेश्चन में कि जहां पे आपके कर्व्स मीट कर रहे हैं वहां से आप परपेंडिकुलर्स डाल दीजिए एंड फाइंड आउट दीज पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट्स निकालो, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड द लाइन। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू या यहाँ से x की वैल्यू इस इक्वेशन से हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस इज 4y minus 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। So this value will be 16y square plus 4 minus 16y is equals to 4y. Now 16y square minus 20y plus 4 is equals to 0. 4 हमें कॉमन दिख रहा है, so 4y square minus 5y plus 1 is equals to 0. अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4y square, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, -4y minus y plus 1 is equals to 0. इन दोनों में 4y कॉमन है, so it will be y minus 1. यहाँ पे -1 कॉमन है, it will be y minus 1 is equals to 0. So this is y minus 1 into 4y minus 1 is equals to 0. y की वैल्यू 1 है और 1/4 है। अब y की वैल्यू 1 और 1/4 अगर हम इक्वेशन में डालते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम 1 डालते हैं तो 4 minus 2 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी एक पॉइंट हमारा आ गया 2,1। और अगर हम 1/4 डालते हैं तो एक हो जाएगा 4 into 1/4 minus 2। सो x की वैल्यू हो जाएगी -1, तो पॉइंट हो जाएगा -1 और 1/4, ठीक है। सो मतलब हमारे पास इस साइड जो पॉइंट आया वो 2,0 आ गया और इस साइड जो पॉइंट आया वो -1,0 आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, हमें जो पूरा एरिया निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा एरिया शुरू कहाँ से हो रहा है, हमारा एरिया शुरू हो रहा है -1 से, एंड हो रहा है 2 पर। अगर मैं लाइन से इक्वेशन लेती हूँ तो मुझे ये पूरा एरिया इन दोनों के बीच में एरिया मिल जाएगा। सो अब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, द लिमिट इज -1 to 2। लाइन से इक्वेशन ले रहे हैं तो लाइन से इक्वेशन हो जाएगी x plus 2 अपॉन में 4 इंटू में dx। बट ये ज्यादा जो एरिया आ गया, बिकॉज पूरा एरिया आ गया, हमें तो पूरा एरिया नहीं चाहिए था। जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया आया है कर्व के नीचे वाला, ये वाला जो एरिया एक्स्ट्रा आया है, ये वाला एरिया और इधर वाला एरिया, इसको तो हमें माइनस करना है, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो अगेन -1 से 2 होगा, आप कर्व से इक्वेशन लेंगे। सो -1 से 2 लिमिट हो जाएगा, और जब हम कर्व से इक्वेशन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x² अपॉन 4 dx। सो उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2, लिमिट लगा देंगे -1 से 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा x, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे -1 से 2, -1/4 हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन में 3, लिमिट लगा देंगे -1 से 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। सो इट विल बी, अब x की जगह में 2 रखेंगे तो इट विल बी 4, फिर माइनस, फिर x की जगह -1 रखेंगे 1 अपॉन में 2 प्लस 2, x की जगह 2 रखेंगे, फिर माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये टर्म विल बी -1/12। नाउ इफ आई पुट द लिमिट तो इट विल बी 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस, फिर -1 का क्यूब है तो +1 हो जाएगा। So this value will be 4 minus 1 3 upon में 2, 1/4 into 3 upon में 2 plus 3 into 2 6 minus 1/12 into में 9। So here it will be 1/4। अगर हम इसमें LCM लेते हैं
तो ये 12 + 3 15 माइनस 9 अपॉन में 12 हो जाएगा। तो 3 3 = 9 और 3 4 = 12। तो एलसीएम हमारा 8 हो गया। तो दिस टर्म इज 15 minus 6. 15 minus 6 is 9. 9 upon में 8 square unit. That is the answer. Now question number 11. We have to find the area between the curve y square is equals to 4x and the line x is equals to 3. So curve y square is equals to 4x is simple. ये वाला पैराबोला हो गया हमारा and x is equals to 3 के लिए लाइन हो गई. So you have to find the area enclosed between these two. This is very simple. ये area 1 है और ये भी area 1 है, मतलब ये पूरा area हमें find out करना है. So twice of area 1 कर सकते हैं. This point is 3,0. So जो required area है that is 0 to 3 और ट्वाइस हो जाएगा बिकॉज जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो हम जो है ये वाला एरिया निकाल के इसका डबल कर देते हैं. ठीक है, अब ये 0 to 3 लिमिट हो गई. y की वैल्यू हो जाएगी 2√x dx. तो ये हो जाएगा 4. सो इट विल बी 4. इट विल बी x पावर 3/2 एंड इनटू में 2/3 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं. सो दिस वैल्यू विल बी 8/3. अगर x की जगह हम 3 रखेंगे तो इट विल बी 3 पावर 3/2 ऐसे. ठीक है, तो इट विल बी 8/3 इंटू में 3√3 ले लेते हैं बिकॉज 3 पावर 3/2 की बात हम कर रहे हैं. दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर 3 पावर 3, तो ये तो स्क्वायर रूट होता है ना. दिस विल बी 3√3. ये और ये कैंसिल हो गया तो ये हमारा बन गया 8√3 स्क्वायर यूनिट्स. दैट इज द आंसर. एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल x square plus y square is equals to 4. आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है. एंड द लाइन x is equals to 0 एंड x is equals to 2. दो लाइन से आपके पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया. सर्कल को देख के हम समझ ही गए होंगे कि सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है बिकॉज x minus 0 square plus y minus 0 square is equal to 2 square. तो ये पॉइंट 2,0 हो गया, ये पॉइंट 0,2 हो गया. x is equals to 0 का मतलब होता है y एक्सिस. सर्कल तुम्हारा बन गया. ये आपका x is equals to 0 है एंड द लाइन x is equals to 2 है, तो ये लाइन x is equals to 2 होती है. So you have to find out the area in the first quadrant only. So ये वाला सिर्फ एरिया वो हमसे पूछ रहा है. So required area, सबसे पहले तो हम जो है लिमिट डिसाइड करते हैं. लिमिट इसकी 0 से 2 है. सर्कल से इक्वेशन लेना है तो √a² - x² हो जाएगा. So this will be 2 square 2 square minus x square into में dx हो गया. इसका फॉर्मूला लगा देते हैं. x/2 √a² - x² plus a²/2. a² means 4/2 sin इनवर्स x/2. इसकी लिमिट हमने लगा दी 0 से 2. अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी और ये हो जाएगी 2 sin इनवर्स 1. ठीक है, फिर -0 लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, तो सब कुछ ही 0 हो गया. साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 होता है. सो इट विल बी 2 × π/2. ये और ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया पाई स्क्वायर यूनिट्स. दैट इज द आंसर. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² is equals to 4x. ये फर्स्ट वाला पैराबोला है. y एक्सिस चाहिए, लाइन चाहिए, y is equals to 3. सो आप देखो पहले वाला पैराबोला है y² is equals to 4x. y एक्सिस है, ये हो गया. y is equals to 3, ये लाइन हो गई सपोज. ठीक है, तो आपको एरिया बाउंडेड इन बिटवीन दीज चाहिए. तो दिस इज एरिया, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. सो ये अब देखो ये पॉइंट तो ओरिजिन है, ये पॉइंट 0,3 है, तो सिंपल है. रिक्वायर्ड एरिया आपको फाइंड आउट करना है. सो टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट 3. इन दिस क्वेश्चन बी केयरफुल क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कम हैं. y एक्सिस पर लिमिट ले रहे हो, y की वैल्यू ले रहे हो तो dy आएगा और वैल्यू x की पुट करेंगे. सो इट विल बी y² / 4. सो 1/4 तो बाहर आ गया एंड दिस इज y³ / 3. अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे 0 to 3. सो दिस वैल्यू इज 1/12 आउटसाइड एंड दिस वैल्यू विल बी 27. सो ये हो जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स. Answer. I hope you like this video. For other exercises of this chapter, please watch the complete
playlist of this chapter at my channel.